Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Welcome back in your online classes after exam. I hope you all had very good exams. So, today let's start chapter 5. Chapter 5 name is the Internet Web Browser. Okay, in this chapter, today we will read about history of Internet, basic terms of Internet, hardware and software requirement of internet. So open your book and let's start reading. Okay, this is page number 59. So open your book. Already know in this picture, this is our desktop. Okay, so here you can see a name Google is written. So we use internet with वेब ब्राउज़र. ओके, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र. सो देर आर मैनी डिफरेंट वेब ब्राउज़र आर देयर. वी कैन यूज़ एनी वन. सो टूडे इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेब ब्राउज़र. टर्न टू नेक्स्ट पेज. Our first topic is what is internet. Internet is a vast computer network which connects millions of computers all over the world with one another. It makes information sharing between various machines possible. The internet is the largest network of computers spread across the globe. The net does not have a central point or control center. Anyone with the computer with all requirement hardware can become part of it and use it, send and receive information in variety of forms. The internet has changed the modern life. Every kind of information is available on internet. There are millions of application of internet. डियर स्टूडेंट, इंटरनेट क्या है? बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़ी वर्ल्ड को जो आप कहीं भी कोई भी कहीं से भी किसी को इंफॉर्मेशन सेंड या वहाँ से रिसीव कर सकता है. ओके, तो वर्ल्ड में बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है इंटरनेट. इंटरनेट से हम कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. ओके, इंटरनेट दिस नॉट हैव ए सेंट्रल पॉइंट और कंट्रोल सेंटर. इंटरनेट का कोई कंट्रोल सेंटर नहीं है. जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, एक कंप्यूटर और जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसके साथ आप नॉर्मली इंटरनेट यूज़ कर सकते हो और इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं. इंटरनेट जो है उसने मॉडर्न लाइफ को काफ़ी चेंज किया है. कैसे भी इंफॉर्मेशन, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन एक्सचेंज and there are millions of application on internet. You can use these application for your sending information and receiving information and any other. You can get any information from internet. You can read different books with the help of internet. So there are many applications which you can use easily. Okay, now next topic is history of internet. The internet was created by the Department of Defense, USA. Department of Defense, DOD. The full form is Department of Defense, USA, in 1969. Thought to make a network that could continue working even in a nuclear attack. इंटरनेट है वो सबसे पहले क्रिएट हुआ 1969 में. किसने क्रिएट किया? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएसए. यूएसए का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने क्रिएट किया 1969 में. This network come to be known as Advanced Research Project Agency Network. जो ये नेटवर्क है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसने इस नेटवर्क की को जो इंटरनेट है उसे क्रिएट किया.
In the mid-80s, National Science Foundation created a new high-capacity network more capable than ARPANET. सबसे पहले किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जिसका क्या नाम था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये एक एजेंसी थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जिसने क्रिएट किया। उसके बाद मिड ऑफ 80s में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नया इंटरनेट क्रिएट किया जिसकी जो कैपेसिटी है वो ARPANET से ज़्यादा थी, वो मोर कैपेबल था। Soon, private companies built their own network and connected to ARPANET and NSFNet to form Internet. The original ARPANET and SFNet was discontinued, but various companies carried on using it, and thereby it started grow, leading to the modern Internet. ओके जो बाकी जो डिफरेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी जिन्होंने क्रिएट किया और वो कनेक्टेड होते रहते हैं ARPANET और NSFNet से। जो ओरिजिनल ARPANET है वो डिसकंटिन्यूड हो चुका है, यूज़ नहीं होता है, बट जो वेरियस कंपनीज हैं वो अभी उसे ग्रो कर रही हैं, यूज़ भी कर रही हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट। अब बेसिक टर्म्स क्या क्या है इंटरनेट की? Here is an example of the basic terms of internet. First is World Wide Web, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WWW भी बोलते हैं। World Wide Web is a collection of interconnected pages that contain text, pictures, and videos and movies. It was invented by Tim Berners-Lee, a software engineer in 1991. World Wide Web is popularly known as the Web or W3. These specially formatted documents are text documents created in HTML, a formatting language. Okay, World Wide Web क्या है? Collection of interconnected pages. बहुत सारे पेज जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? टेक्स्ट है, पिक्चर्स हैं, ऑडियो एंड वीडियोस, मूवीज एक्सेट्रा। तो इन बहुत सारे पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, वो हमें मिलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? कलेक्शन है, बहुत सारे पेज एक ही जगह पे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह में मिल जाती है, टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो या ऑडियो फॉर्म, वीडियो फॉर्म, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय टीम बर्नर-ली। WWW को किसने इन्वेंट किया था? टीम बर्नर-ली, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 1991 में। वर्ल्ड वाइड वेब इज पॉपुलर नोन एज वेब और W3। हम वर्ल्ड वाइड वेब को नॉर्मली वेब या W3 के नाम से जानते हैं। These specially formatted documents are text documents created in HTML, a formatting language. जो डॉक्यूमेंट्स जो WW क्रिएट हुआ है वो नॉर्मली उसकी जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है वो एक HTML जो एक फॉर्मेटेड लैंग्वेज है उसमें क्रिएट हुई है। हियर यू कैन सी द इंजीनियर टीम बर्नर-ली, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हिम। टीम बर्नर-ली इज नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। टीम बर्नर-ली को हम फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले WWW का इन्वेंट किया था। नेक्स्ट टर्म इज वेब ब्राउजर। A web browser is a software that lets you access the pages on the World Wide Web. Some example of web browsers are Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, etc. तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट से पेजेस मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उन्हें एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। जो सॉफ्टवेयर वो होता है हमारा वेब ब्राउज़र। तो ये सब एग्जाम्पल है वेब ब्राउज़र के कि कौन कौन सा वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड क्रोम। वेब पेजेस। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 61। The pages that make up the World Wide Web are known as web pages. A web page can contain any type of information and can include text, color, graphics, animation, and sound. A web page is created using a language called HTML.
hypertext markup language. It can be seen or accessed using a web browser. जो पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर क्रिएट होते हैं या हमें जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जो हम पेज एक्सेस करते हैं वो होते हैं वेब पेजेस. वेब पेजेस कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखते हैं, लाइक टेक्स्ट भी हो, टेक्स्ट है, कलर, ग्राफिक, एनिमेशन एंड साउंड. जो कोई भी वेब पेज जो क्रिएट होता है वो होता है HTML की हेल्प से. HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज. फुल फॉर्म ऑफ HTML इज Hypertext Markup Language. It can be seen or accessed using a web browser. ये जो वेब पेजेस हैं वो हम देख सकते हैं यूजिंग अ वेब ब्राउज़र. किसी एक वेब ब्राउज़र को यूज़ करके हम जो वेब पेजेस हैं www पर जो क्रिएटेड वेब पेज है उन्हें हम देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. Hyperlinks. Next topic is hyperlinks. A web page may contain link to other pages or to another place in the same web page. These links are known as hyperlinks. A hyperlink may be a text or a picture. The mouse pointer generally takes the shape of a hand when it is moved to over a hyperlink. When you click a hyperlink, the part that it is linked to open in the web ब्राउज़र विंडो. हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? कुछ लिंक्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको एक पेज से दूसरे पेज या किसी एक पेज से एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जंप करने के लिए हेल्प करते हैं. लाइक ये वेब पेज अगर एक हाइपर लिंक हो तो यहाँ से हम डायरेक्टली किसी दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं. वो एक जो हाइपर लिंक होते हैं वो एक टेक्स्ट या पिक्चर कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट विद अंडरलाइन. जब किसी भी हाइपर लिंक पर जब हमारा माउस मूव करता है तो हाइपर लिंक पर जाने के बाद जो शेप है माउस की वो कैसी होती है? हैंड शेप. ओके. और हम हाइपर लिंक पर जो लिंक हमें दिया है, जो लिंक हमें मिला, उस पर क्लिक करके एक पेज से डायरेक्टली दूसरी ब्राउज़र विंडो पर जंप कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वेबसाइट. अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट्स दैट आर एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट. अ वेब पेज इज what you see on the screen when you type in a web address, click on a link or put a query in a search engine. वेबसाइट क्या है? बहुत सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स जो हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं. सो वेबसाइट पे क्या है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन. और वेब पेज क्या है? जब भी हम कुछ टाइप करते हैं सर्च इंजन में या जो आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस जो टाइप करते हैं तो जो लिंक या जो पेज हमें ओपन होकर आता है वो होते हैं हमारे वेब पेजेस. होम पेज. दिस इज द फर्स्ट एंड इंट्रोडक्टरी स्क्रीन ऑन द वेबसाइट और वर्ल्ड वाइड वेब विच इज यूज टू ग्रीट विजिटर्स. जनरली दिस पेज कंटेन इंडेक्स एंड लिंक टेक्स्ट और ग्राफिक रिलेटेड टू दिस पेज. द होम पेज ऑफ CBSE इज शोन हियर. होम पेज क्या है? फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी स्क्रीन ऑन द वेबसाइट मीन्स जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो जो उसका फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है. लाइक आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे CBSE की वेबसाइट ओपन करके यहाँ पे शो करा रखी है, तो उस जो फर्स्ट पेज होता है उस पर क्या होता है? उस वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इंडेक्स की उस वेबसाइट में आपको कौन कौन से वेब पेजेस मिलेंगे जिन्हें आप रीड कर सकते हो. सो जो इंट्रोडक्टरी फर्स्ट पेज होता है वो होता है हमारा होम पेज. सो एनी फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. Okay students, for today it is enough. Your homework is to read page number 59 to 61 of chapter 5. Okay students, thank you. Have a nice day.